My name is Aarti Kaushik and I am here with another video, and this video is also not subjective one. Here I am with something unusual. Here I am with the topic depression. And why I have decided to talk about depression? Because people don't like to talk about it. They made it a taboo, or they start thinking if we will talk about it, or we call ourselves that we are depressed or we have anxiety issue or stress issue, people will start thinking that we are psycho or mad. But we are not. We are normal people. So it happens with everyone at a point in their life, whenever they feel some career issue like failures, or relationship issue, breakup, divorce, and child loss. Someone close to them is no more there, or people who have faced violence and economical issue, poverty, and people who have faced sexual assault, etc. These kind of people face mental trauma in their life, but they not like to talk about it because they start feeling it will make them feel weak and vulnerable. They start thinking people will judge them whenever they will say we are low, or I am feeling low, and I'm not feeling okay. Then people will call you are behaving like a shit. But it is not the fact. There is something unusual happening in your body, and that is responsible for their mood, because it is a two-way thing. um, Mind affect your mood, and your mood affect your mind. So it is not one way. And depression is caused by two factors: genetic and environmental. Genetic theories are there. One was about monoamine oxidase inhibitors that inactivate serotonin, epinephrine, and dopamine, due to which a stress condition caused in our body and mechanism get disturbed. That neurotransmitter pathway get disturbed, and there are some gene on the chromosome 23p, 25, and 26 that are responsible for depression, due to the that polymorphism that occur in the structure of gene, due to which अनफंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म। और समटाइम्स क्या होता है कि जो रिसेप्टर होता है जिससे प्रोटीन जाके बाइंड होता है, हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, वो जो रिसेप्टर है वही अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं जो हेरिडिटी या फिर हम बोले तो जेनेटिकल होते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज होता है। बट इट इज़ ओनली 40% ऑफ द स्टोरी, क्योंकि डिप्रेशन 40% केसेस में जेनेटिकली होता है। जब मैं एक आर्टिकल स्टडी कर रही थी, देन आई केम अक्रॉस विद द फैक्ट दैट 800 फैमिलीज हु फेस्ड सीवियर डिप्रेशन एंड हु यूज्ड टू हैव द फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड टू डिप्रेशन, देयर जेनेटिक their genome showed the polymorphic gene in their chromosome that affect neurotransmitters and cause depression. बट अगर मैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करूँ, मान लो कोई एडवर्सिटी आप फेस कर रहे हो या पॉवर्टी फेस कर रहे हो, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका HPA सिस्टम जो है इम्बैलेंस हो जाता है। HPA हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एडर्नल कोर्टेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस कंडीशन में आए, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, CT जो हमारा कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है CTH, वो सिक्रेट होगा। फिर उसके बाद वो अफेक्ट करेगा हाइपोफाइसिस पे। हाइपोफाइसिस का साइज इंक्रीज हो जाता है जब डिप्रेशन होता है, और वो क्या सिक्रेट करता है, ACTH, एक्टिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। फिर ACTH जो है वो फर्दर एक्ट करता है एडर्नल कॉर्टेक्स पे। एडर्नल कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या सिक्रेट करता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड, और मेन कोर्टिकोस्टेरॉइड वो कोर्टिसोल सिक्रेट करता है। जो कोर्टिसोल होता है वो ह्यूमन के केस में स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब ये स्ट्रेस हार्मोन मेजर रोल प्ले करता है कि ये लाइफ स्पैन में किस टाइम पे डेवलपमेंटल, कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में, कौन से ग्रोथ पीरियड में ये सिक्रेट हो रहा है। मान लो चाइल्डहुड में इन्फेंट्स के केस में हो रहा है, या फिर यंग वंस के केस में हो रहा है, या फिर ये टीनेज के केस में, एडल्ट के केस में हो रहा है, या फिर ओल्ड एज में हो रहा है। डिपेंड करता है कि किस ग्रोथ पीरियड में ये सिक्रेट हो रहा है, उस तरह से ये अफेक्ट करता है आपकी ग्रोथ को, आपकी डेवलपमेंट को, और आपकी इम्यूनिटी को। जैसे जब हम ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन देयर एंड व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, है ना। तो हम सोचते रहते तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, तो उसके लिए वो जितने भी ब्लड में शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, उसको ड्रेन कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है,
अब वो जितनी ज़्यादा एनर्जी लेगा, इतना ज़्यादा ग्लूकोज लेगा, तो ऑब्वियसली हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी, ड्रेन आउट हो जाएंगी एंड हम एग्जॉस्ट फील करना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं वी क्रेव ए लॉट, हम बहुत ज़्यादा फीडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फूड लेते हैं और क्या होता है, हम ओवरवेट हो जाते हैं, हमें क्रेविंग होती है कैफीन की, शुगर की, स्वीट्स की, है ना, और हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी की तरफ भागते हैं। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है एंड वी आर फीलिंग एग्जॉस्ट। तो हमारा क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वी आर फीडिंग ए लॉट। और कोर्टिसोल प्ले मेजर रोल, जिसकी वजह से हमारा जो बायोकेमिकल पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमें जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन या स्ट्रेस कंडीशन को फेस कर लेते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चों में होता है उसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, तो बच्चों में वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट शो करता है। बट कुछ बच्चे बाय बर्थ भी अफेक्टेड होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से, बट स्ट्रेस इज ए कॉज दैट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म, और जिसकी वजह से आपकी पिट्यूटरी सॉरी थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली हार्मोन नहीं सिक्रेट कर पाती और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप विटिलिगो आपको हो सकता है, विटिलिगो जिसमें आपको वाइट स्पॉट हो जाते हैं बॉडी पे, स्किन पिगमेंटेशन, और आपको थायराइड ट्यूमर भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती हैं, प्लस आप ओवरवेट तो हो ही जाओगे, और गर्ल्स में तो और भी ज़्यादा इशू होते हैं, मेंस्ट्रुअल इशू एंड ए लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैपन। सो यू नीड टू कॉम्बैट डिप्रेशन or stress issues as soon as possible. That's why I'm here to talk about it, because it's hilarious to know that a lot of things could have happened if you will not combat it as early as possible. um, I think अगर आप बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, लाइक चाइल्डहुड से फेस कर रहे हैं, इट कुड बी जेनेटिक, तो आप प्लीज़ अपना डायग्नोस्ट कराइए और सीक हेल्प फॉर इट, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आपको मेरी एज में जाके या फिर टीन एज में या फिर एडल्ट में किसी इंसिडेंट के बाद से आप को डिप्रेस होना या फिर स्ट्रेस इशू आपने फेस किए हैं, तो देर आर लॉट ऑफ थेरेपी लाइक टॉक थेरेपी वर्क्स लाइक वंडर। You talk to anyone if your parents are not there to understand you and they are not getting your point, then talk to your siblings, your friends, anyone, or write down in your journal or diary etc that you have, uh, but speak out it. अनदर है कि भाई आप योगा ट्राई कर सकते हो, योगा एक्सरसाइज वॉक एंड मेडिटेशन। इसका क्या इफेक्ट होगा, देखो नेचर में जब हम जाते हैं या वॉक करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा या किसी को हक करते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, नोरेपिनेफ्राइन, ये सब सीक्रेट होते हैं जो हमारे मूड को बूस्ट करते हैं। अगर इन्वायरमेंटल कॉज है डिप्रेशन का तो इट विल वर्क, डेफिनेटली वर्क, बट एक टाइम लगेगा। सो स्टार्ट डूइंग दिस एंड कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और टॉक थेरेपी करिए। और मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है, हमारा जो माइंड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे फेलियर में, हमारे गुड लुकिंग में, हमारी हेल्थ में, इन एवरीथिंग। अगर आपने वो बुक पढ़ी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो आप अफेक्टेड होगे और जानते होगे इस चीज़ को, और या फिर आपने कभी खुद में एक्सपीरियंस की होगी ये चीज़। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं शाम को सोती हूँ कि मेरे को सुबह ये योगा पोज करनी है, तो आई विल डेफिनेटली डू इट इन द मॉर्निंग, बिकॉज दैट थिंग जो मैं खुद से बोल रही हूँ वो अफर्मेशन का काम करती है और आई एम फीडिंग माई सबकॉन्शियस माइंड, तो जो इट वर्क्स लाइक वंडर, ठीक है। तो इट रियली हेल्प्स। तो मेडिटेशन से क्या होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है, जो आप चीज़ें भूल जाते हो वो याद आने लग जाती हैं, आपका माइंड स्टेबलाइज होता है। अनदर थिंग और अनदर फैक्ट इज डैट हमारी न्यूरॉन्स रिन्यू नहीं होती हैं, रीजनरेट नहीं होती हैं, ओनली स्टेम थेरेपी इज देयर, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, बट अभी वो इतनी एडवांस नहीं है, ना ही हम इतने कैपेबल हैं कि आप अफोर्ड कर पाएँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स होते हैं वो हो जाएंगे अगर हम लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस इशू फेस करते हैं। आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा और आपको स्काइजोफ्रेनिया भी हो सकता है। सो आई एम वेरी disturbed after studying all these things, that a lot of things could have happened. So I wanted to tell you all, and I wanted to share, that's why I shared this
with you. Hope it will be helpful to you, and thank you so much for watching my video. I will again say, tell your parents, tell your friends, tell your siblings that you are not okay. There is nothing wrong in facing what you are facing. Confront yourself, that's important.